नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं अरुण सर और निकुंज सर से, जिन्होंने हाल ही में एपीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक किया है और उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका सक्सेस मंत्र क्या है। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना ये है कि हम जो एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स है एपीसीएस का, जो जुलाई 7 से शुरू होने वाला है। फैकल्टीज़ फ्रॉम दिल्ली एंड मैं खुद भी सीसेट पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है उसमें आप कॉल करके बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनुज और आप आए हैं एटी टॉक्स पे, जो एटी इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंट किया है। ये जो एक नया एपिसोड हमने शुरू किया है इसका एटी टॉक का, इसका मेन मोटो है कि हम लोग कुछ यूथ टैलेंट और वेल नोन डिग्निटरीज़ को हम अपने शो में लाएंगे और कुछ उनसे उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आप लोग को लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे, ताकि आप ऑनलाइन सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं, सीधा संपर्क कर सकते हैं उनसे। और ये जो एटी टॉक्स है ये फुल्ली नॉलेज बेस्ड होने वाला है और इंस्पिरेशन मिलेगा सब लोग को, स्टूडेंट्स को और बाकी जनों को भी जो हमारे व्यूअर्स हैं। आइए हम अपना इंटरव्यू चालू करते हैं। तो आज आपके साथ है निकुंज भुई और चामरक अरुण सर है, और रिसेंटली इन्होंने जो एपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें निकुंज सर ने सीओ का पोस्ट हासिल किया और डीवाईएसपी का अरुण सर ने किया। तो हम लोग ये लाइव लेके आए हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग का क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को भी थोड़ा मदद हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस कल से कलेक्ट किए स्टूडेंट से। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेसन टू आवर बोथ द डिग्निटरीज, जो कि निकुंज सर मेरे फ्रेंड भी है और अरुण सर भी मेरे बचपन के दोस्त थे। My name is Nikunj Bui. I am from Daporijo. I did my schooling from BKB Kupurijo. My percentage was 79. And after that I studied in Government Higher Secondary School Daporijo. And my percentage was around 70. And finally I did my Bachelor of Science from Deranatun Government College. Here I fall short. My percentage was only 59. And I was preparing for this exam for the past 6 years, I should say. And 1 year I spent in coaching in Delhi. And currently I was pursuing my LLB degree from Government Law College, Jyote. Regarding my family, my father himself is a civil servant, and he did motivated me from my childhood onwards. In fact, all my family members, they used to say that I should carry on the legacy of my father. And definitely it helped me by boosting me. Apart from that, I had a lot of motivation factor from Sir Hibu Robin, IPS officer, and Armstrong Palmer sir, IS officer. My hobbies is reading books, playing games, especially cricket and football, and doing workout at gym. And that's it. First of all, thank you so much, AT Institute, for inviting us to give this interview and to tell something about ourselves. So my name is Chamrak Arun. So I'm basically from village Tamen. It's in Kamle district. I did my schooling from government primary school Tamen, and then government higher secondary school Raga, and then higher secondary school Zero. So after that I did my graduation in BE Electrical from Nasik in Maharashtra. Working experience, if I say, presently I'm working as a cluster coordinator in ARSR LM, and my family background is concerned. I have 3 mothers and 7 siblings. I'm the youngest one, and if I talk about like my hobbies and all, my first hobby is like swimming, and second one is teaching. So that's all. ओके, थैंक यू सर। तो मैं निकुंज सर से पूछना चाहूँगा, आपका जो सक्सेस मंत्र
वो बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। If you ask me in one word, it would be smart work. And if you want little elaboration, I can do it. Yeah, please. As everyone might be knowing that this was my second attempt. During my first attempt, it was pure hard work, no? I was working like a bull. I could remember all the articles, all the current affairs, everything. But I couldn't replicate those things in my answer sheet in the main exam. And I could score only 720 plus, only in mains, no, last year. But this year, I could score 900 plus. And it was all due to smart work. And I would say that my success mantra would be passion, smart work, and you should be good and you should be, kind to others. So, as we know, you have already appeared in the Viva in last APCS, if I am correct. Yes, so, getting to that point and not getting to your desired destination, it makes you feel low. Many quit their preparation and all. So what do you want to tell to our viewers that how to cope up with that situation and how to bounce back? I would like to answer this question in this way that everything takes time. When I started preparing for this exam, I was 23 years, or you say 24 years. Right now I'm 31, so it took almost 6 years for me to crack this exam, no? So everyone who is in my same age bracket, please don't lose hope. समय में सबका होता है, नो? समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, समय के बाद जो मिलेगा वो भी बेकार होता है. तो you will get it. तो हम धैर्य रखिए, हार्ड वर्क करिए, and get good companies, no? If you surround yourself with people who demotivate you, तो आप वैसा ही खत्म हो जाएगा. अच्छा संगति रखो, and as I used to say that be happy, watch good movies, read good books, उससे भी आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा. एंड अपना ड्रीम को मरने नहीं देना है, आज नहीं तो कल डेफिनेटली इट विल हैपन. सो हमारे एक व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू गो विद द न्यू पैटर्न, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? Okay, I just wanted to tell those viewers who have put the questions. So it is very pertinent questions. Like recently, APCS has changed the pattern. It's a same pattern to the UPS examination. So people, like the aspirants have to be confined to the syllabus, right? So you should not to go here and there. Just confine the syllabus. That is the one way to deal with such kind of the patterns which has been changed. So you need not to be panic on that. So just keep composed and just feel you should be in comfort zone, and you should just act on according to the syllabus prescribed. So that's all. Do you think that change in pattern is a boon or a curse for the student who are preparing? Or what are the effects they gonna get? Sir, I must say it is both of it. Like it's boon as well as great challenge also. Like why I said boon, because it's a similar syllabus to the UPSC examination. So definitely our Arunachali aspirants they will get a double benefit, like for preparing APCS as well as UPSC also. So I hope that in next 1 or 2 years, definitely our Arunachali student, the candidate, or they will select it in UPSC. So I hope. And why it is a great challenge, like before the changing of pattern, APCS syllabus was just a little bit confined. I mean, say it's just not up to the UPSC level. It was a very old pattern. So it has changed now. So I must say, like UPSC has includes so many topics that has very relevant to the current scenario. So I must say, though it is challenging, so people should embrace it and they should act on it. Okay. So अरुण सर ने बहुत अच्छा बात बोला है कि ये एक अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि आप लोग यूपीएससी का भी प्रिपरेशन इसी दौरान कर सकते हो, क्योंकि आपका पैटर्न सब कुछ सेम हो गया यूपीएससी के साथ में. सो आई होप इट्स ए बून फॉर एवरीबडी. सो निकुंज सर भी कुछ बोलना चाहते हैं? Definitely, I would like to add some of my viewpoints on this topic. सबसे पहले why it's a challenge, as he said, ये क्यों एक बैंड है हमारे लिए.
इससे सबसे पहले द मेनलैंड पीपल, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, द मेनलैंड पीपल स्पेशली दोज गाइज हु आर प्रिपेयरिंग इन दिल्ली, आई वुड से रादर से नॉन APSC, उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका हो जाएगा. एंड वी ऑल नो दैट इट्स 80-20 रेशियो, एंड आई कुड सी दैट ये 20 रेशियो में बहुत लोग आने वाला है, आई थिंक सो, बिकॉज ये ओपन कर देता है आपका वो मार्क दौर को. एंड लास्ट टाइम व्हेन जब हम लोग एग्जाम क्रैक किया था, दैट टाइम देयर वाज टॉपिक रिलेटिंग टू अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट. उसका वजह से बहुत से नॉन APSC लोग नहीं दे पाते थे, या दे से कि तो मुश्किल होगा हमारे लिए. बट नाउ सिंस इट्स एक्जैक्टली सेम ऑफ UPSC, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका हो जाएगा. ये है एक चैलेंज. दूसरा चैलेंज ये है कि स्पेशली तो फॉर गाइस जो मेरा जैसे जो बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहे थे 2 ऑप्शनल के साथ, उन लोगों का थोड़ा बहुत एक हल्का सा लॉस हो जाएगा, बिकॉज प्रिपेयरिंग फॉर 2 ऑप्शनल्स, और उसमें ऑलमोस्ट मास्टर होने वाला था, एंड फाइनली दे हैव टू ऑप्ट फॉर 1 ऑप्शनल. ये हो गया 2 चैलेंज. एंड इफ यू से ये क्यों ब्लेसिंग है, देन आई वुड से कि एस अरुण सर एज ऑलरेडी सेड कि UPSC पैटर्न का है, तो आप साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन कर सकते हैं, UPSC भी एंड APCS के लिए. हमारे समय में क्या होते थे कि हम लोग UPSC में एक्सेल देगा एंड एक्सेल याद देगा, उससे हम लोग का एनर्जी वो कम हो जाता था उससे. और दूसरा ब्लेसिंग क्यों है बोलने से, ये फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स देयर हैज़ बीन सो मच ऑफ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग ये सब्जेक्ट ईजी था, वो सब्जेक्ट टफ था, इन फॉर द कमीशन, फॉर द एस्टीम कमीशन. उन लोगों के लिए एक समस्या का हल हो जाएगा. अभी ना कोई कंप्लेंट बाजी, ओनली मेरिट विल स्पीक, दैट्स व्हाट आई फील. एक्चुअली हम उसी के लिए आया था टू इंस्पायर पीपल, इसलिए. तो इसमें आई वुड से दैट कि आप सबसे पहले यू शुड अवॉइड 3 टाइप ऑफ पीपल, जो भी फ्रेंड हो या जो भी हो, दोस्त हु आर इंटरेस्टेड इन दिस 3, आई वुड से W3, 3W, दैट इज वुमेन, वाइन एंड वेल्थ. ये जो दोस्त आपको इसका तरफ लेके जाते हैं ना, इंक्लिनेशन, उससे दूर रहिए, स्पेशली ड्यूरिंग दिस एग्जाम प्रिपरेशन, क्योंकि इसका जो एडिक्शन होता है वो बहुत ख़राब होते हैं. एंड एस मिस्टर अरुण सर सेड दैट अपना सिलेबस को कंप्लीट करो, कंप्लीट योर सिलेबस एंड रिवाइज इट, बिकॉज कंप्लीट करना इज डिफरेंट थिंग एंड रिविजन इज डिफरेंट थिंग. एंड रिविजन वुड हेल्प यू. कंप्लीट योर सिलेबस, रिवाइज एंड अटेंड मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट वो भले ही प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए हो, इवन फॉर वाइवा, और एंड आई वोंट रिकमेंड कि यही इंस्टीट्यूट में करिए, कोई भी इंस्टीट्यूट में करिए, बट ये 3 प्रोसेस जरूर करिए. कंप्लीट योर सिलेबस, रिवाइज इट एंड अटेंड मॉक टेस्ट. डेफिनेटली सक्सेस आपका कदम चूमेगा. मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो जैसे निकुंज सर का है वही सेम है. फर्स्ट तो ज्योग्राफी था, फर्स्ट ऑप्शनल जो, और सेकेंड जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था. तो ज्योग्राफी हमने मेरा क्यों ऑप्शनल में रखा, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसे एक सब्जेक्ट है जिसको आप करंट जो चीज़ को, जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स हो या जो भी एक इन्वायरमेंटल चेंजेस वगैरह, आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं. और ज्योग्राफी के लिए आप जैसे सामने में आपका जो सराउंडिंग में जो चल रहा है तो वो चीज़ देख सकता है. तो इसलिए, और ऊपर से ज्योग्राफी जो समझने में थोड़ा आसान भी है, लाइक जैसे कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है. जैसे आपने प्रेजेंटेशन अच्छा किया हो मेंस में, तो उसमें ये बहुत सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है. और सेकेंड बात जो ऑप्शनल मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने क्यों लिया बोलने से, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो डायरेक्टली एक ये सिविल सर्विस जॉब का डायरेक्टली कनेक्टेड है. मतलब सर्विस कैसे देना है सोसाइटी को, और कैसे एक आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर का बिहेव करना है, एक एथिक्स डेवलप करना है, वो सब जो आपका अंदर में आ जाता है. तो इसलिए हमने मैंने ये एक ऑप्शन 2 ऑप्शनल लिया है. यही है मेरा. अगर स्ट्रेटजी का बताएगा तो ज्योग्राफी में ऐसे कि आपको ऐसे बुक लेना है जिसमें ऐसे मार्केट में जो प्लाडेड है वो सब जैसे जो आदमी रिकमेंड करता है वो लेना नहीं है. जैसे आप लाइक शुरू से जैसे UPSC में भी ऐसे ही एडवाइस दिया जाता है कि आप पहले NCERT बुक जो है उसको गो थ्रू करो, तो इसके बाद जाके आप जो लाइक रिकमेंडेड बुक वगैरह हैं तो वो आप ले सकते हैं. तो यही मैं स्ट्रेटजी देंगे, आइडिया यही दूंगा मैं. सो अरुण सर से एक क्वेश्चन था. तो मैंने आपको देखा है फिज़िकल जब टेस्ट होने से पहले आपने बहुत मेहनत किया था. IG पार्क में भी बहुत रनिंग वगैरह किया था, सब कुछ किया था. मैं भी आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया उसमें. तो मेरा क्वेश्चन है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द फिजिकल टेस्ट फॉर एस्पिरेंट? अगर हम APCS का बात करें, लाइक DYSP में रिसेंटली जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है तो उसमें DSP में हमको सेलेक्ट हुआ है.
तो उसमें फ़िज़िकल जो बहुत मैंडेटरी है। फ़िज़िकल मैंडेटरी क्यों है बोलने से, एक पुलिस फोर्सेस को मतलब एक फ़िज़िकल होना है, फिटनेस होना है। तो शुरू से मेरा ये एक इंटरेस्ट था कि फिटनेस को लेके, तो हम हमेशा कहीं भी जाओ, इवन पार्क में जाओ, कहीं में भी जाओ, तो वॉक मतलब ये करता है, मतलब फ़िज़िकल एक्सरसाइज टाइप का करता है और जो जॉगिंग वगैरह करता है। तो इसलिए एक पहले इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप एक फिटनेस रहेंगे, अगर फिज़िकल मेंटेन करता है तो वो डायरेक्टली आपको DYSP में काम आया, जैसे मेरा केस में। और सेकेंड बात ये था कि लाइक एफिशिएंस एग्जामिनेशन में हम जो ये पर्टिकुलरली ये एग्ज़ाम का बात करेंगे, इसमें क्या हुआ कि जो फिज़िकल क्वालिफाई हुआ तो उसके लिए बहुत सारा एक बून था, मतलब एडवांटेज था। लाइक कंपटीशन एज़ कम्पेयर टू दी, लाइक इसमें इस बार में 104 पोस्ट था, तो उसमें आपको 1:3 लेना था, तो 312 कैंडिडेट था। तो फिज़िकल हमने क्लियर करने के वजह से क्या हुआ कि मेरा कंपटीशन जो कम हो गया, जैसे कि 16 पोस्ट में 34 जैसे हुआ, तो उसमें 1:2 में ही कंपटीशन हुआ। तो इसलिए फिज़िकल जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, तो आपको फोर्सेस में जाना हो तो डेफिनेटली मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये एडवांटेजेस है। I would like to add one point. इसमें एक डाटा है मेरे पास हल्का सा, ऐसी said कि there were 16 posts, no, and 34 candidates qualified for physical training. I'm sorry, जो भी physical test qualify किया है। तो इसमें हुआ क्या है कि उन 34 में से भी बहुत से जो रैंक आगे थे, like they opted for CO, तो बाद में फाइनली 1:1 रेशियो ऑलमोस्ट हो गया था। तो इसलिए अगर आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं नो, तो इतना बेनिफिट है कि आप ऑलमोस्ट श्योर हो जाता है कि यू विल बी गेटिंग सम पोस्ट नो। अगर श्योर नहीं तो एटलीस्ट आपको DSP मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स वाई आप लोग फिजिकल टेस्ट को लाइटली मत लीजिएगा। आई हैव सीन लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो शायद मार्क्स बहुत अच्छा है, बट सिंस दे फेल्ड इन फिजिकल टेस्ट नाउ दे आर रिग्रेटिंग कि वो क्यों थोड़ा और नहीं दौड़ा है, थोड़ा बहुत क्यों मेहनत नहीं किया। थैंक यू निकुन सर एंड अरुण सर। निकुन सर से एक क्वेश्चन है, एज यू हैव बीन ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट एज ए फैकल्टी, सो आपको स्टूडेंट्स को क्या कहना है और आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। आपको लाइफ में कुछ चेंजेस पता चला या कुछ जो भी रिगार्डिंग दिस इंस्टीट्यूट। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जब व्हेन आई वाज एन एस्पायरेंट माई सेल्फ, जब मैं 4 साल या 5 साल जब मैं कर चुका था प्रिपरेशन, तो ऐसे ही मैं कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर का मैं अटेंड किया था। तब उसने मुझे बोला है कि लाइक आप अगर 4 साल ऑलरेडी अगर ये फील्ड में हो तो यू माइट बी हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग सिलेबस, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, देन यू शुड स्टार्ट टीचिंग नो। उसने मुझे बताया, तो मैंने सर को बोला सर मुझे टीचिंग का इतना शौक भी नहीं है और मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। देन ही टोल्ड मी कि आप जब करेगा तभी तो एक्सपीरियंस होगा, अब क्यों कोई जन्म से तो एक्सपीरियंस लेके आएगा नहीं है। देन इट मेरे दिमाग में लगा एंड आई जॉइंड AT इंस्टीट्यूट। और उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, आई मीन आई बेनिफिटेड इमेंसली। सबसे पहले आपका अंदर में आता है कॉन्फिडेंस, आप लोगों से आई टू आई मिलाने का आपका पास वो हिम्मत आता है, और कहीं ना कहीं ये आपको एक मौका देते हैं प्रिपरेशन करने का। आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपको पहले खुद भी तो पढ़ना होगा, इसलिए तो आप भी तो टीचर, आपको मालूम है। सबको लगता है कि टीचर आके यूँ ही पढ़ा के चला जाते हैं, फॉर दैट दे हैव टू खुद को हार्डवर्क करना पड़ता है आने से 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले। तो सबसे पहले वो आपका फोकस को शार्पन कर देता है बीइंग ए टीचर। सेकेंडली टू ऑल माई स्टूडेंट्स जो था, मैंने उन लोगों को पहले भी बोला था कि CSAT में ऑलमोस्ट सब पास हो जाएगा नो, हार्डली 1-2 ही होगा जो बिल्कुल ख़राब करेगा, दे विल फेल। अदरवाइज पेपर 1 ही डिसाइड करेगा कि आप मेंस लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा। सो फोकस मोर ऑन योर GS पेपर। CSAT पेपर मैंने जो कराया था, ये सर ने जो अभी करा रहे हैं उससे हो जाएगा, डोंट टेक टेंशन रिगार्डिंग CSAT। उसके बाद रिगार्डिंग AT इंस्टीट्यूट नया ज़रूर है बट इट्स वर्किंग लाइक वंडर्स नो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आई हैव सीन मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट इन ईटानगर, सब लोग बस अलग काम में लगा हुआ है। एंड दिस AT इंस्टीट्यूट इज़ गिविंग वेरी गुड माहौल दे रहे हैं, अच्छा माहौल दे रहे हैं, एंड एटमोसफेयर जो क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स व्हाट आई अप्रिशिएट अबाउट यू। थैंक यू सर, तारीफ भी कर दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन था जॉनी लोमतुम का, कुड यू रिकमेंड गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट? आप लोग कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट को रिकमेंड करना चाहते हैं? और एक साथ में क्वेश्चन ये भी है कि आप लोग सिलेबस कलेक्शन कैसे करते हो सर? आप ये
गुड इंस्टीट्यूट का अगर ये बात है ना, उसमें हम तो ये कहना चाहेंगे कि इंस्टीट्यूट जो भी एक इंस्टीट्यूट है तो सब तो सेम ही सिलेबस आपको कवर अप करता है, तो सेम स्पीड में ही मतलब लगभग चलता है। तो मेन चीज़ क्या है बोलने से इसमें लाइक आपको इंटरेस्ट होना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये है। तो इंस्टीट्यूट को जैसे कि कोचिंग को एक मैंडेटरी टाइप का आदमी लोग सोचता है। चलो कोचिंग में बहुत सारा बेनिफिट्स है ना, लेकिन देखिए इसमें पहले खुद को एनालाइज करना, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस में समझ में नहीं आ रहा है, वो पहले आप जानना पड़ेगा। इसके बाद जाके आप कोचिंग ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना वो कीजिए। हाँ, डेफिनेटली आपको गाइड हो जाता है और एक प्रिस्क्राइब्स मतलब जो मटेरियल्स मिल जाता है तो डेफिनेटली हेल्प होता है कोचिंग में। और अगर हम सजेस्ट कोचिंग का बात करें तो अरुणाचल ईटानगर में हमने अभी तक तो उतना डायरेक्ट कोचिंग किया नहीं है। तो पहले बाहर में तो करने में किया था, यहाँ तो किया नहीं है, लेकिन मॉक इंटरव्यू हमने ज़रूर यहाँ में किया था ये एटी इंस्टीट्यूट में। फर्स्ट मेरा मॉक इंटरव्यू जो एटी इंस्टीट्यूट में ही कंडक्ट किया था। तो फैकल्टी जैसे ये मैनेजमेंट तासीर सर और अनुज सर ने मतलब सबको हम लोग को कंडक्ट कराया, तो वो जो बहुत मेरा अच्छा एक पॉइंट था। तो इसमें कोई ये नहीं है कि सर अभी हमें कम पढ़ना है या ज़्यादा पढ़ना है, जो पढ़ना था उसको बार बार पढ़ना है आपको। द मंत्र इस बार बार पढ़ना है, ये रिवाइज है नो। एंड रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा था जिसको मैंने सर ने कहा था कि ही वॉज वेरी डिप्लोमेटिक एंड ही सेड कि ही वोंट रिकमेंड एनी नेम नो, बट सिंस यहाँ हम लोग इसका ट्रबल सूत्र के हिसाब से आए तो आई विल नेम सम कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हमको लगता है कि ये शायद सही है, लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो इट्स योर फाइन नो। तो सबसे पहले आई फाइन कि 3 इंस्टीट्यूट जिसको मुझे लगता है कि अभी तक अच्छा काम कर रहे हैं इन ईटानगर, जहाँ का फैकल्टी को मैं कुछ जानता हूँ एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। बाकी मुझे इतना नहीं मालूम। ये 3 है, एक का नाम है डेफिनेटली सक्सेस पॉइंट अंडर द गाइडेंस ऑफ राजीव सर, दूसरा है ये पार्टिसिपेंट IAS, एंड फाइनली आई वुड रिकमेंड दिस एटी इंस्टीट्यूट जिसमें हमारा ये अनु सर ही इज़ ऑल्सो लाइक यू नो वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द सक्सेस ऑफ द कैंडिडेट्स या एस्पायरेंट्स। तो आई वुड नेम दिस 3 इंस्टीट्यूट कि आप इसमें कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड काम आपको करना है। यू नो कोचिंग इंस्टीट्यूट बस आपको गाइड कर सकता है कि ऐसा करिए वैसा करिए एंड एक माहौल बनाता है, बाकी पढ़ाई करना वो आपका ही हाथ में। अगेन आई वुड से कि कोई मेरा फॉर एग्जांपल मेरा कोई अपना सिबलिंग अगर हमको पूछेगा कि अच्छी करना है कि नहीं करना, आई वुड से यस जरूर करिए। अगर आप में वो रिसोर्सेज है, आपका पास समय है, व्हाई नॉट। इट्स लाइक आस्किंग कि सर हम मोबाइल फ़ोन लेगा कि नहीं लेगा, अगर ज़रूरी तो बिल्कुल लीजिए। आप अगर बस्ती में रहते हैं जहाँ पे मोबाइल का ज़रूरत नहीं है तो उसमें वो एक लग्जरी हो जाएगा। बट अगर आपका पास रिसोर्सेज है, समय है एंड घर में चुपचाप बैठने से अच्छा कोचिंग ज्वाइन करना अच्छा रहेगा। एंड रिगार्ड इन माई केस आई फील दैट कोचिंग आपको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। आप अपने जो आसपास के लोगों को देख कर एंड यू गेट एक्साइटेड नो कि अच्छा ये पढ़ रहे थे, आई हैव टू स्टडी दिस वे। इट्स क्रिएट यू नो मेंटल टफनेस इन यू एंड आई वुड से येस कोचिंग करिए अगर आपका पास समय है एंड ऑल दैट। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपका कोई सीनियर या आपका कोई पेरेंट्स दे आर ऑलरेडी इन दिस सर्विस एंड अगर आपको सही ढंग से गाइड कर सकते हैं देन इट्स वेरी अननेसेसरी। अदर देन दैट पीपल लाइक मी जिसको बहुत ज़रूरी था ये गाइडेंस का, दैट्स व्हाई आई जॉइन एंड आई वुड सजेस्ट कि ज्वाइन करिए, नो इशू। विदाउट माई फैमिली आई डोंट थिंक दैट आई वुड बी हियर। तो मेरा फर्स्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है हम फैमिली को ही मानता है। तो और अदर जो है लाइक आपका एक इंडिविजुअल ट्रेट्स है। सो आई मस्ट से लाइक यू शुड बी ऑनेस्टी, मतलब आई एम बीइंग ऑनेस्ट। सो आई थिंक दैट ऑनेस्टी इज़ वेरी नेसेसरी और आपका अंदर में डेडिकेशन होना है। तो मेरा पास भी तो डेडिकेशन है और थर्ड वाला हार्ड वर्किंग है। हम जैसे एक गवर्नमेंट स्कूल से ही आया है, मतलब स्कूलिंग मेरा पूरा गवर्नमेंट स्कूल से ही किया था, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है उसमें, क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट में कंपैरिजन किया जाएगा तो प्राइवेट में थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा मतलब कुछ मिल जाता है, जैसे कि स्पून फीडिंग टाइप का, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। गवर्नमेंट स्कूल से जो आता है तो उसके लिए थोड़ा सा एक गाइडेंस प्रॉपर नहीं होता है। जैसे मेरा केस में अगर बोलेंगे तो जैसे कि मेरा पेरेंट्स ही मतलब ऐसे उतना ये नहीं था, ये एजुकेशन में ये नहीं था, तभी भी हमने पता नहीं कहाँ से कैसे आ गया। तो फैमिली का सपोर्ट है और हार्ड वर्किंग सक्सेस के लिए हार्ड वर्किंग तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब विदाउट हार्ड वर्किंग यू कैन नॉट बी सक्सेस। सो हार्ड वर्किंग जो परसिस्टेंस है और ये जो डेडिकेशन है वो सब जो है मेरे अंदर में है, ये हम बिलीव करते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट नो,
एक्चुअली ये जो प्लेटफॉर्म हमको मौका देता है बहुत से लोगों को थैंक करने के लिए, दैट्स वाई आई सेड कि मुझे भी बोलने का अवसर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज मिस्टर अरुण जमरा सर है सेड दैट कि आपका अंदर का जो एक इंडिविजुअल ट्रेट होता है वो तो काम करता ही है कि आप कितना डिटरमाइन है, आप में कितना पेशेंस है, कितना लेवल तक आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, वो सब तो अलग बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट योर फैमिली सपोर्ट, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगा तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, नो। तो येस, माई फैमिली सपोर्टेड मी थ्रू आउट द जर्नी। उसके बाद वंस आई कंप्लीटेड माई एग्ज़ाम या जो भी था, उसके बाद येस देयर वर मेनी लाइक माइंडेड फ्रेंड्स ऑफ माइन जिसने मुझे ये सपोर्ट किया है, नॉट ओनली मी, जिसने हमने आपस में सपोर्ट किया है। बिकॉज सबको पता है कि ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीज़न ये एग्ज़ाम इतना लंबा क्यों गया, कोर्ट केसेस वगैरह वगैरह। ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वर सो मेनी गाइज हु हैड स्पाइन, नो, जिसके जो डिटरमाइन थे। एंड आई वुड लाइक टू नेम सम। एक हमारा है तासिक ग्याली सर, दूसरा आई वुड लाइक टू से न्याबिन सर, देयर इज़ नाम एक्चुअली अतालिया मैम इज़ देयर इज़ पप्पू सर, ताजा सर, सो मेनी ऑफ देम जो फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए। इवन देन दे हैव गिवन यू नो देयर 101% कि नहीं, सिंस वी हैव गिवन दिस एग्जाम वी वांट द रिजल्ट, एटलीस्ट वी नीड ए लॉजिकल कंक्लूजन। भले ही हम लोग हार जीतो दिस डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट वी शुड फाइट। दैट फाइटिंग स्पिरिट हेल्प अस यू नो इन दिस लॉन्ग जर्नी। तो मेरा एक उन लोगों को भी आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दोज माई गाइज। अपार्ट फ्रॉम दैट द लॉयर्स हु हेल्प इन सिंगल बेंच डबल बेंच जो भी थे, सोनार सर हैं, यूके नार सर, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम। थैंक यू एवरीवन। कालुंग अप्पा ने पूछा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, बोला है उसने। सो ये अपना स्टूडेंट ही है। हाउ इम्पोर्टेंट इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस? Thank you so much, Kalung. For practicing answer writing, you have to be like intensively practice on that. Like एक जैसे presentation, आप कितना knowledge है और आपका पास क्या है, वो जो आप जो आंसर चेक करते हैं उसको पता नहीं होता है। लेकिन आपका द वे ऑफ राइटिंग और आपका एक आर्टिस्टिक आंसर प्रेजेंटेशन जो वो मैटर करते हैं, वो कब आपको डेवलप हो पाएगा, जब आप जो प्रैक्टिस करते रहेगा। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और प्रेजेंटेशन लाइक हम जैसे ज्योग्राफी का कोई सब्जेक्ट में कहना चाहूँगा, उसमें क्या होता है कि लाइक फिगर्स वगैरह इंपॉर्टेंट होता है, फिगर्स मैप वगैरह ये सब होता है। अगर आप लाइक आंसर के साथ में कुछ डिस्क्रिप्शन का साथ में अगर फिगर का आप प्रेजेंट कर दिया तो वो सब जो है बहुत इफेक्टिव होता है। और अगर आपका पास समय नहीं होता है, कभी कभी ये भी होता है कि आपको एक स्केलेटन डायग्राम बनाना होता है शॉर्टकट प्रेजेंटेशन में। आगे में आप एक स्केलेटन डायग्राम बना दीजिए, मतलब जैसे एरो करके वो सब कर सकते हैं। इसके बाद जाके तो डिस्क्रिप्टिव लिख सकता है। तो ये है आंसर प्रैक्टिस। इसमें आप थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो हो जाएगा। ऐसे तो उतना टफ नहीं है बस, लेकिन अब थोड़ा कंसिस्टेंसी उसको मेंटेन करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोर तो होता है। और सेकेंड बात ये बोलना चाहूँगा, जैसे लाइक ऐसे प्रैक्टिस में इंग्लिश हो या ऐसे जो भी हो, आपको एक ऐसे प्रैक्टिस सीखना पड़ेगा। उसमें हमको एटलीस्ट हर एवरी वीक में आपको एक ऐसे टाइप का जो भी एक टॉपिक उठा के ऐसे लिखना चाहिए। उसमें आपका डेफिनेटली हेल्प फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, एवरी एग्जामिनेशन। इफ़ यू विल डेवलप दैट काइंड ऑफ आर्टिस्टिक, डेफिनेटली यू कैन प्रेजेंट वेरी वेल एंड और इफेक्टिव वे में लिख सकता है। तो वही है उसमें। ओके, निकुंज सर को भी कुछ बोलना है? बिल्कुल। एक्चुअली ये मेंस के बारे में बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ एक्चुअली, नो। इसका एक्सपीरियंस इसलिए मेरा पास इसलिए है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उसके बाद मैंने अपना आंसर शीट निकला, नो। आई न्यू दी मार्क्स कि मुझे इतना कम मिला है। अच्छा, मुझे क्यों मिला है ये जानना बहुत ज़रूरत होता है ना। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा यू शुड ट्राई टू फाइंड वाई इट हैपेंस। तो मैंने अपना वो निकला है वो आंसर शीट, और जब मैंने चेक किया तो बाद में मुझे लगा ये कि मैंने क्या लिखा है, नो, बुलशिट, इतना बकवास कि मुझे जो मार्क्स मिले वो भी कहीं ना कहीं मर्सी का वजह से मिला है। सो फाइनली आई चेंज माई वे ऑफ राइटिंग। जो पूछा है क्वेश्चन अप्पा सर जो भी था, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइक आपने क्वेश्चन पूछा है। मेंस राइटिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट वही है अगर ये एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हैं, नो। प्रीलिम्स तो ऑलमोस्ट हो जाता है बिकॉज 79 पोस्ट मल्टीप्लाई बाई 11, तो हर कोई कैंडिडेट जो हार्डवर्क है और थोड़ा बहुत स्मार्ट है वो हो जाएगा। बट मेंस में आपको मालूम चलेगा कि आप कितना बाकी से अलग है, बिकॉज वाइवा में इतना मार्क्स डिफरेंस नहीं होते एंड इट्स बस रैंकिंग के लिए वाइवा का मार्क्स काम आता है। अदरवाइज इट्स मेन। हमारे समय में अराउंड 1600 था, अभी भी ऑलमोस्ट वही होगा मेरे हिसाब से। तो उसको करना कैसे है सबसे इम्पोर्टेंट। तो
तो आई वुड सजेस्ट एस कि अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट था, उसके बाद जीएस जो भी था, उसके बाद यू सिट फॉर मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट करने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है और समय नहीं है, देन यू शुड राइट योर ओन आंसर। नो, यू कैन जॉइन ऑनलाइन, कोई कोई फ्री में भी कराते हैं सब एनजीओस वगैरह। आप टेस्ट करिए, जब तक आप टेस्ट नहीं करेगा आप मालूम नहीं चलेगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं एंड व्हाट इज़ योर वीकनेसेस। एंड आई ऑलवेज से दैट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वर्क ऑन योर वीकनेसेस, वही आपके लिए काम आएगा। एंड मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन। एंड टू वेरी ऑनेस्ट, कोई भी एग्जाम में कोई भी टॉप किया है, इन दिस एग्जाम ऑल्सो द नीति बेन, सी वॉज माई जूनियर इन बीकेबी कुपुरिजो। तो सब ऐसा लगता है कि वो ऐसा ही क्लियर कर दिया। अरे भाई उसने कितना मेहनत किया, वी डोंट नो ना। आई मीन कितना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा, कितना प्रैक्टिस किया होगा, कितना उसने एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा जो चीज़ होता है इंग्रेडिएंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, टॉपर बनने के लिए, उसने वो किया हो जो हमें नहीं मालूम है। दैट्स व्हाई आई सेड कि जस्ट डोंट फॉलो द हर्ट मेंटेलिटी। ये नहीं है कि सी क्रैक बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, और मैंने देखा है कि बहुत लोग एंथ्रोपोलॉजी के पीछे जा रहे हैं, अपना जो ऑप्शन पुराना ऑप्शन छोड़कर। अरे भाई अपना स्ट्रेंथ को भी देखिए, अपने स्ट्रेंथ पे काम करिए, उस पर ध्यान दीजिए। ये नहीं है कि किसी और का स्ट्रेंथ पे खेलने जाएगा आप क्लीन बॉल हो जाएगा। तो येस, मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आंसर आई थिंक इज ऑल्सो यू नो अटमोस्ट प्रायोरिटी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर टेक ऑन ऑनलाइन मोड कोचिंग? क्योंकि अभी कोरोना है ना, सो कोरोना का क्राइसिस के वजह से ऑफलाइन तो सभी बंद ही हो गए एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सो हम लोग तो फ़िलहाल ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं हम लोग के मोड से। सो दिल्ली से टीचर वहाँ से करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट कर सकते हैं। सो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन मोड कितना कारगर है? आई वोंट कमेंट कि किसी का लॉस हो किसी का फ़ायदा होना, बट इतना ही बोलेगा कि अगर आप दौड़ नहीं हो सकते हो तो यू कैन एटलीस्ट वॉक तो कर सकते हैं ना। सेम सिनेरियो है, अगर ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है तो यू कैन गो फॉर ऑनलाइन, नो अदर ऑप्शन, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल्स है, दुनिया भर का ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। तो इफ़ यू कान रन एटलीस्ट यू कैन वॉक, तो ज्वाइन करिए, नो इशू। सर आपको कुछ बोलना? On this issues, I mean online coaching process, हम तो ये बोलना चाहिए कि ये इनिशिएटिव जो अच्छा है, द फर्स्ट थिंग जो क्या है, एक इनोवेटिव आइडिया है। तो इनोवेटिव आइडिया है, उसमें आप घर बैठते बैठते आपको नॉलेज मिल जाएगा। जैसे निकुंज सर ने बोला है कि आप अगर दौड़ नहीं सकते तो चल सकता है। तो एटलीस्ट अभी का समय पैंडेमिक सिचुएशन में अभी इंस्टीट्यूशंस पूरा बंद है, जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जो भी है, तो वो सब जो है अभी बंद करके रखा है अंदर SOP से, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स में। तो आपको ये होना है कि कुछ ये ऑनलाइन इसमें आप पार्टिसिपेट करके आपको एटलीस्ट कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज अभी का समय में, जैसे पैंडेमिक है तो हम ऐसे नहीं बैठना कि पैंडेमिक हुआ है और सब लॉकडाउन है नहीं निकालना, ऐसा नहीं होना। तो ये सब करना चाहिए। तो इसलिए ये ऑनलाइन को मेरा तरफ से बहुत ये अच्छा इनोवेटिव है। तो जैसे AT इंस्टीट्यूट ने अभी इनिशिएट किया है कि ऑनलाइन कोचिंग देना है, ये सब जो ये अच्छा एक इनोवेटिव आइडियाज़ है। तो मैं ये कहूँ। ओके, थैंक यू सर। तो AT इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है APSC के लिए और APSSB के लिए भी। आप लोग कोई जुड़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि सर आपने मुझे यहाँ बुलाया, इनफैक्ट मेरा इंस्टीट्यूट था, सॉरी आई वॉज द फैकल्टी, वन ऑफ द फैकल्टी। तो आई फील प्राउड कि आज अब यहाँ पढ़ा रहा था, कल यहाँ अगर आप कुछ बोलेगा तो पीपल विल गेट इंस्पायर्ड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, तासी सर एंड अनुज सर। मेरे आने वाला जो एस्पायरेंट है उन लोग का हम यही कहेगा कि एज आई सेड अर्लियर, अपना आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपना आपको ऐसा सर्कल में सराउंड करिए जिसका सेम मकसद हो, एग्ज़ाम क्रैक करना। एंड आई ऑलवेज say these last few lines to all my friends that hide your strength and bide your time। और जब मौका मिलेगा तब आप हथौड़ा लोहा पे मार देना। अपना जो भी ताकत है उसको छुपाए रखो, बस गैदर करते रहो अपना जितना भी ताकत है, और समय टाइम पास करो। सबको लगना चाहिए कि यार ये लड़का तो कुछ नहीं जानता है, और जब मौका मिलेगा इतना ज़ोर से हथौड़ा मारो कि प्रोसेस बदल जाएगा वो लोहा का। दैट्स इट। आपको कुछ बोलना है? लास्ट कंक्लूजन अगर हम देंगे उसमें ऐसा है, हम एक मैसेज देना चाहेगा। जैसे बहुत लोग का अंदर में ये परसेप्शन होता है कि प्री कंसेप्ट होके बैठा है कि एक गवर्नमेंट का जो स्कूल का बैकग्राउंड है, आई मीन वहाँ से जो आता है स्टूडेंट, तो वो जो
नहीं सकता है एग्ज़ाम में या फिर पीछे रह जाता है, ऐसे एक परसेप्शन है। तो वो चीज़ जो नहीं है, जो एक न्यू एस्पिरेंट को मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। सबका दिमाग ओपन है और अनलिमिटेड है, कुछ भी आप मिल सकता है। और आप ये नहीं सोचना है कि वो सीनियर जो 5 साल से 6 साल से प्रिपरेशन करे, डेफिनेटली ही विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, ही विल सक्सेस। डोंट थिंक लाइक दैट। अगर आप जो समय में प्रिपरेशन देता है, स्ट्रेटेजी अच्छा प्लान करता है, तो राइट समय में राइट एक्शन लाता है, तो आप सीनियर जूनियर का या में नहीं है। इसमें ये एग्ज़ाम में भी एग्जांपल देख सकते हैं। बहुत सारा जूनियर है, उसने क्या किया, इतना आगे रैंक अचीव किया है। तो ये एक क्लियर कट एग्जांपल है। और सेकेंड बात, ये मैं फ्रेंड्स, जो मेरा जो फ्रेंड्स है लाइक जिसका साथ हमने साथ में प्रिपरेशन किया है, जो भी है, तो उसका साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर वो जो एग्ज़ाम अनफॉर्चुनेटली जिसको नहीं मिला है, तो ये नहीं है कि उसका पास नॉलेज नहीं है। तो मैं ये बोलते हैं कि इसका पास कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ है या फिर कुछ एक थोड़ा एक लेगिंग है, तो उसको वो लेगिंग को इम्प्रूव कीजिए, तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो इसलिए लास्टली आई जस्ट कंक्लूड लाइक सम वन ऑफ इम्पोर्टेंट कोट फ्रॉम द विंस्टन चर्चिल। तो उसने क्या किया कि सक्सेस इज वर्किंग फ्रॉम फेल्यूर टू फेल्यूर विदाउट लूजिंग योर इंथुजिज्म। तो आप इंथुजिज्म लॉस मत कीजिए, तो डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू द एग्जाम एनी काइंड ऑफ इन योर फ्यूचर। सो दैट्स ऑल। तो बहुत अच्छा लगा आप दोनों आए, थैंक यू। तो इनको कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, और व्यूअर्स को भी थैंक यू जो आए हैं यहाँ पे।